sorry. So the next thing is coming to the mainly terminologies, some basic terminologies which is you can see or you can use in the subject of biostatistic, or you whenever you will analyze the data, that some basic terminologies you have to use. In that terminology, one of the important terminology is the characteristic. Characteristic. The another one is the population. Population and the parameters, samples, measurements. These all type of data. These all the things which you have seen in the all over the classes. What is the sample? What is the characteristic? What is the data? What is the population? So other type of other than the things which we have applied in the general purpose, there is the same word but apply in the biological purpose, or you can say the living thing. So characteristic, if we, it's first thing is we talk about the characteristic. So characteristic, what is the characteristic? Characteristic is the thing which we have, everyone have, not only I or we, everyone have the some special features, some different things which are the qualities or measurement measurements is the different one from the another, is the different one from the another, is known as characteristic, is known as characteristic. So what is characteristic? Characteristic is the thing which is qualities or measurement is different from one to another, is different from one to another. Qualities or measurable things which is different one from the another is known as characteristic. कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे characteristic का? Anyone? Hello, am I audible? Yeah. बता सकता है मुझे मेल और फीमेल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हो गया है ना? वेरी गुड. मेल और फीमेल, फीमेल भी एक कैरेक्टर है, मेल भी एक कैरेक्टर है. सो वेरी गुड. और ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो तरह के चीजें आती है इसमें, जो दो तरह की चीजें आती हैं कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि अस्सलाम वालेकुम. हाँ ठीक है, हम देख के बताएंगे. अभी क्लास स्टार्ट की, क्लास में दो तरह की चीजें हम देखते हैं जब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं. वन थिंग इज द वेरिएबल और द इट कैन बी चेंजेबल, और द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज द फिक्स्ड. So gender, like gender is the fixed thing, caste is the fixed thing. These are the fixed. And variable things क्या हो जाएंगे? जैसे height, weight,
income, hemoglobin, IBC level, all these types of things which you can, okay, these are the characteristic. It is the variable characteristic. So the first thing is the what is characteristic? Characteristic is the, why it is not going? Characteristic is the quality or measurement, the thing which is different one to another. Quality and measurement which is differentiate one to another is known as characteristic. Then the characteristic is the two type. Characteristic is the two type. If we are going to the detail in the characteristic is the two type. What is that? That one is the attribute, or you can say fixed. स्लाइड आपका नहीं चल रहा है. ट्राई कर रहा हूँ चलाने का, लेकिन चल ही नहीं पा रहा है. अच्छा, कोई नहीं, चल नहीं पा रहा है इसीलिए. तो पहली चीज क्या हो जाती है? एट्रीब्यूट. और दूसरी चीज क्या हो जाती है? वेरिएट. यानी जो चीजें वेरिएट कर रही है, वेरिएशन है. और दूसरा एट्रीब्यूट, यानी जो जिन चीजों की वजह से एक पार्टिकुलर एट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसकी पहचान हो रही है, उसकी पहचान हो रही है. तो अगर हम बात करें एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक की, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमेशा क्या होता है कि ये एक ग्रुप को बिलोंग करता है. हमेशा एक ग्रुप को बिलोंग करता है. जैसे मेल और फीमेल, क्या हो गया? मेल पूरा एक ग्रुप है, फीमेल पूरा एक ग्रुप है. उसी तरह कास्ट वाइज हम चाहे तो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं. रिलीजन वाइज अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं. ब्लड ग्रुप वाइज अलग अलग ग्रुप होता है, बना सकते हैं. तो इस तरह से जो एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं. आइदर दो ग्रुप के होंगे या फिर मल्टीपल ग्रुप होंगे. आइदर दो ग्रुप्स होंगे या फिर मल्टीपल ग्रुप्स होंगे. अगर ये दो ग्रुप के होते हैं तो इसको डाइकोटोनमस कहा जाता है. डाइकोटोमस कहा जाता है. डाइकोटोमस. Attribute is the characteristic which is recorded in the data as label or text. Attribute is the characteristic which is recorded in the data as label or text. Always belong from the groups. Always belong from the group, but it may be individual. But it may be individual in some cases. So mostly it has the two type of attributes. Number one is the dichotomous, 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 and the another is the polychotomous. Another is the polychotomous. Like, what is the dichotomous? Dichotomous means the subject or the population is belonging in the two groups. The subject or the population is belonging from the two groups, like male, female, Hindu, Muslim, laika, laiki, boys and girls. And polychotomous means multiple groups. The given population is belonging from the multiple groups. The given population is belonging from the multiple groups is known as polychotomous. 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 Domous. Polychotomous. In these types of attributes, you can use the multiple thing like ABORH. ABORH. RH is the dichotomous. RH is the dichotomous, but ABO grouping is the polychotomous because it is the ABO. There is the three groups. Further, it is the
A positive, B positive, O positive, A negative, B negative, O negative. So this is the AB. polycotomous. This is the polycotomous. In you can also take the example as a caste. Means in the India, you can see especially Hindu and Muslims have the multiple caste system. Multiple caste system. So you can the polycotomous. Polycotomous. Understand what is the attribute and what is dichotomous and polycotomous? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the you can see the multiple thing like like the data which you have seen in multiple groups, like 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, or you can make it the group. So all those data which you are making in the group, you can keep in the either dichotomous or either polycotomous. Example, we have the group of 25 students and we all have the different HB level. So what we can make the 8 to 10, 8 gram to 10 gram, 10 to 12, 12 more than 12. We have the 3 groups. So our HB is belonging in the polycotomous. Our HB level is belonging in the polycotomous characteristic. Okay. Then come to the next type of characteristic is variate. Number one is the attribute and the second one is the variate. If you can see the variate, the mainly itself tell you, name itself tell you, variate means it is the variable thing. It is the variable thing. The character who is variate. The character who is variate and always shown in the numbers or numerals. Always shown in the number or numerals, or expressed in the numbers or numerals, or record in the numbers or numerals, is known as variate characteristic. What is variate characteristic? The variate characteristic is the thing which is variable, which is variable, and always seen in the numbers, or expressed in the numbers or recorded in the number, like our blood pressure, our HB level, our RBC level, many things, our pulse, our respiratory rate. These all are the variable things. So you can use as a variate characteristic. So these type of characteristics is also have 2 different type of characteristics. Variate characteristic is also 2 different types. Number one is the continuous variate. Like if you are remembering the pulse or respiration, rhythm. So you can see the regularly irregular or irregularly irregular. Regular, irregular, regularly irregular, irregularly irregular. So you can keep it on that mind, keep in mind, and remember the things. Variate. One thing is that it is the variation. The another, यानी regular, different. Variate यानी variable है, different है, और फिर इसमें
ये वेरिएशन जो आ रही है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस वेरिएट है या डिस्क्रीट वेरिएट है, फैला हुआ वेरिएट है, यानी इसका कोई सम अप नहीं है, कंटिन्यूइंग नहीं है इसमें। जैसे कि हम सब अगर इंडिविजुअली बात करें, जो हम लोग 20-25 लोग हैं, इसका इंडिविजुअली बात करें तो हमारे में सबकी डिफरेंट डिफरेंट, या कहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो है मेरा HB 14.1 है, कोई बोलेगा मेरा 14.2 है, कोई बोलेगा 14.5 है, कोई बोलेगा 8.1 है, तो ये क्या है कि डिस्क्रीट है। वहीं कंटिन्यूअस अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये है, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस डेटा में कि एक ग्रुप ऑफ डेटा को लेंगे, ग्रुप ऑफ डेटा में जो होगा वो एक इसमें होगा, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज है, घटते से बढ़ते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कोई चीज, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो जब उस डेटा को हम उसमें सेट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएट। और जब तक हमने रैंडम उठाया और रैंडम उस डेटा को एक्सप्रेस किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएट। रैंडम जब हम उठाएंगे और उसको एक्सप्रेस कर देंगे, पब्लिश कर देंगे या इंटरप्रेटेड करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। और जब हम उसको समअप करके, उसको सिंक्रोनाइज करके जब हम प्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 फीट टू 5.2 इंच, 5 फीट एंड से लेके 5 फुट 2 इंच की एक ग्रुप हमने बनाया। उसको उसमें 25 लोग हैं यहाँ पे, तो 4 लोग आ गए। 5-2 से लेके 5-4 का हमने एक ग्रुप बनाया, इसमें 7 लोग आ गए। 5-4 से 5-6 तक का ग्रुप बनाया, इसमें हमारे 5 लोग आ गए। 5-6 से लेकर के 5-8 का ग्रुप बनाया, इसमें हमारे 8 लोग आ गए। और 5-8 से लेकर 6 फीट का बनाया, इसमें हमारे 2 लोग या 3 लोग आ गए। तो ये क्या हुआ कि जब आप देखेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो डिस्क्रीट है, लेकिन जो हमारा ग्रुप है वो कंटिन्यूअस है। जब हम इस तरह से देखेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो डिस्क्रीट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको ये कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली द थिंग्स विच इज क्वालिटी और measurements is differentiate from the one to another is known as characteristic. Characteristic is basically 2 types, attribute and variate. Attribute is the thing which is recorded in the data, as label or text in groups of individuals, in groups of individuals, or it can be divided into groups, or it can be divided into groups, is known as attribute data, attribute characteristic. It has also 2 types. सर एट्रीब्यूट, सर एक मिनट, एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? दोनों डिफरेंट थिंग। एट्रीब्यूट इज द फिक्स्ड थिंग, जैसे मेल एंड फीमेल, जैसे मेल एंड फीमेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अल्लाह का काम। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, हम देख अच्छा ठीक है, देख के हम बात करते थोड़ी देर में, चूंकि अभी लेक्चर ले रहा हूँ। तो एट्रीब्यूट क्या है वो मैंने पहले भी बताया, फिक्स थिंग है। जैसे मेल फीमेल, जैसे ब्लड ग्रुपिंग, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे मेल है
एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अभी मैंने क्या बताया डेफिनेशन में कि रिकॉर्डेड इन द डेटा लेबल और टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स थिंग है जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को, तो मेल है एक पूरा ग्रुप हो सकता है, वो सारे के सारे मेल के बारे में हम बात करें, फीमेल है सारे के सारे फीमेल के बारे में बात करें, बॉयज है सारे के सारे बॉयज के बारे में बात करें, गर्ल्स है सारे के सारे गर्ल्स के बारे में बात करें, ग्रुप ए, एक ग्रुप की ए ब्लड ग्रुप के पॉपुलेशन के बारे में बात करें, हम बी ब्लड ग्रुप के पॉपुलेशन के बारे में बात करें, हम सॉरी ओ ब्लड ग्रुप के पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो ये सब क्या है, हमारा फिक्स थिंग है, ये वेरिएट नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, ग्रुप्स में होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रुप्स में होगा। अब ये दो ग्रुप में हो सकता है या फिर मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकता है, इसलिए इसके टू टाइप्स होते हैं, डाइकोटोमस और पॉलीकोटोमस। डाइकोटोमस और पॉलीकोटोमस। डाइकोटोमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम, लड़का लड़की, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डाइकोटोमस हो जाएंगे। भाई पॉलीकोटोमस के ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप, कास्ट, लोकेशंस, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीकोटोमस का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, हेलो जी सर। ओके, एंड द वेरिएट मींस, वेरिएट के मानी ही हो गया वेरिएबल थिंग, और ये हमेशा क्या होगा कि नंबर्स में होंगे। उसमें आपने देखा कि कैरेक्टर्स में ज्यादातर थिंग उसमें क्या है, कैरेक्टर्स में, लेकिन इसमें क्या होंगे, सारे थिंग्स नंबर्स में होंगे। नंबर्स में होंगे तो ये नंबर्स में वैरी भी करेंगे, जैसे किसी का हाइट है, वेट है, एचबी लेवल है, या फिर जो है आरबीसी लेवल है, टोटल काउंट लेवल है, प्लेटलेट लेवल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वेरिएट जो करेंगे तो ये दो तरह के, कोई भी वेरिएशन जो होगा दो तरह का होगा। एक कौन सा वेरिएशन होगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा कौन सा होगा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस वेरिएशन किसको कहेंगे, जब हमेशा ये इसमें हो, क्या नाम है, एक ऑर्डर में हो, 2 4 6 8 10 इस तरह से एक ऑर्डर में हो, तो इसको हम कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। वहीं अगर कोई फिक्स थिंग नहीं हो, कहीं पे 10 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 20 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि हम लोग 25 लोग हैं, 25 का डिफरेंट एचबी लेवल है, या डिफरेंट हाइट है, या डिफरेंट आरबीसी है, या डिफरेंट प्लेटलेट काउंट है, लेकिन उसको जब हमने ग्रुप में बांटा तो वो ग्रुप क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गया। लेकिन जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने देखा तो वो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। ओके, अंडरस्टूड, हेलो, यस सर। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, नो सर, नो सर। द नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजीज बार बार हमें सुनने को मिलेगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब जैसे ही पॉपुलेशन दिमाग में आती है तो हम लोग के दिमाग में क्या चीजें आती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी मोहल्ले का, किसी गांव का, किसी सिटी का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का कितना पॉपुलेशन है ना। लेकिन यहाँ पे हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेवल के जो होते हैं उसमें बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन बात करते हैं उस पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं जिसको हमने स्टडी में शामिल किया, जिसको हमने रिसर्च में शामिल किया। तो रिसर्च में शामिल होने वाला जो नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको हम, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको हम पॉपुलेशन, एक उसको पॉपुलेशन कहेंगे। दूसरा, वो किस किस जगह से या किस किस एरिया से या किस किस
इससे कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता है, उसको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। सच एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अभी में हम बात कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में पाएंगे कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स में कुछ टाइप के कैंसर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसी तरह ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स में कुछ टाइप के कैंसर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम कोई कैंसर पे स्टडी कर रहे हैं, अगर हम कोई कैंसर पे स्टडी कर रहे हैं और वो पार्टिकुलर ग्रुप का जो पेशेंट आता है, तो हमें ये ध्यान में, अगर हमने एक एग्जांपल के तौर पे, जैसा कि अमूमन इंडिया में होता है और खासतौर से नॉन इकोनॉमिकल रिसर्च में होता है। नॉन इकोनॉमिकल रिसर्च से मुराद ये है कि जैसे हम अभी आप लोग जो रिसर्च करेंगे, अमूमन ज्यादातर जो पीजी थेसिस, पीएचडी थेसिस, इन सब में जो रिसर्च होती है वो अमूमन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होता है, ओरिजिनल रिसर्च नहीं के बराबर होता है। 99% जो क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होता है। अब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा अगर आप जानेंगे तभी तो उस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। उसके लिए मैं बताना चाह रहा था कि मैनिपुलेशन कैसे किया जाए। अभी जैसे सपोज करो कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ही कॉमन है। अगर ओ पॉजिटिव में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन है और आपने जो पॉपुलेशन लिया 50% लिया, 50% लिया और 50 में से आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने फेक डेटा तैयार किया, अब 50 में से एक दो ही आपने दिखाया, आपका सैंपल साइज क्या है 50 है, 50 में से आपने एक दो ही दिखाया कि ओ पॉजिटिव वाला गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का पेशेंट है, तो यहीं पे आपका पहले स्टेज पे फेक पकड़ा जाएगा डेटा। फिर जब पूरी दुनिया इसको साबित कर चुकी है कि ओ पॉजिटिव ग्रुप में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉमन होता है, तो फिर इसको एक से दो ही क्यों मिला? या तो यहाँ पे एरर हुआ है, सैंपलिंग एरर हुआ है, या फिर ये फेक डेटा है, या फिर जिस जगह में ये हुआ है वहां पे ऐसा ये चीजें अनकॉमन हो, या 3 प्रोबेबिलिटी बन जाती है ना। तो इसलिए पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक वाली पॉपुलेशन, इसमें डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन वाइज देखें तो स्टैटिस्टिशियन यूज द वर्ड ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट सेंस देन द ऑर्डर। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन हमारे दिमाग में आता है किसी शहर का, किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी मोहल्ले का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का पॉपुलेशन दिमाग में आता है। लेकिन एक स्टैटिस्टिशियन जब पॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है तो वहां पे उससे क्या मुराद होती है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। फिर उस रिजल्ट को किस किस पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया ओ पॉजिटिव वाले, तो अगर किसी में ओ पॉजिटिव बहुत सारे, अभी ये तो है नहीं, अभी जैसे दुनिया की आबादी हमारी लगभग 800 करोड़, 750 800 करोड़ है, 750 800 करोड़ में अगर ओ पॉजिटिव देखे तो ऑलमोस्ट अगर ये है 200 करोड़ के आसपास होंगे, या 200 नहीं 150 करोड़ होंगे। तो हमने सारे 150 करोड़ का एनालिसिस तो कर नहीं लिया है, हमने शायद 50 लाख का या 25 लाख का या 10 लाख का या 1 लाख का एनालिसिस किया है कि 1 लाख लोगों में कैंसर पाया गया, जो कि गैस्ट्रिक कैंसर पाया, कार्सिनोमा पाया गया जो कि ओ पॉजिटिव वाला था। अब 1 लाख लोगों में ओ पॉजिटिव वाले में पाया गया, लेकिन बाकी ग्रुप्स में किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 20,000 पाया गया, किसी में 50,000 पाया गया। तो क्या हो गया, इस 1 लाख को मैं 1.5 करोड़ और 2 करोड़ पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन हो गया, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज द आवर पॉपुलेशन
is prone to develop gastric carcinoma. So O positive blood group is the population. तो जहां हमारा डेटा अप्लाई हो सकता है वो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो हमारा पॉपुलेशन होता है. ओके, तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल पर्सन. इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल पर्सन. Object or event about which we want to obtain information or apply the information. Which we want to obtain information or apply the information. अभी जैसे इसके लिए एक और एग्जांपल दिमाग में आया तुरंत में. जैसे आप लोग पीएसएम के लोग हैं, पीएसएम के लोग क्या करेंगे, प्रीवैलेंस रेट निकालेंगे. ज्यादातर स्टडी इसमें जो होती है पीएसएम में वो क्या होती है, प्रीवैलेंस रेट. तो जब आप कभी भी एक टॉपिक बनाते हैं कि आप इस पार्टिकुलर कदम कुआं एरिया के फीमेल का में एनीमिया कितना परसेंट है, तो आप उसको सिर्फ कदम कुआं के पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. आप कदम कुआं में, हाँ नीतीश ठीक है, मैं रिसीव करूंगा. तो जो हमारा कदम कुआं का जो पॉपुलेशन हो जाएगा, अब सपोज को कदम कुआं में की आबादी 50,000 है या 5,000 है, तो सबको तो जो है हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं स्टडी में. 5,000 के लिए उतने सारे हमारे रिसोर्सेज चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि रैंडमली जो है 5,000 में से 50 को या 100 को ले लेंगे या 500 को ले लेंगे और उसका मेजरमेंट करके उसके एचबी का वैल्यू निकाल के और जनरल कदम कुआं के पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे. ठीक इसी तरह अगर हम देखें नॉर्थ बिहार में कालाजार कॉमन पाए जाते हैं, वहीं वेस्ट इंडिया में या फिर नॉर्थ बिहार के बनिस्बत साउथ बिहार में कम पाया जाता था. तो हम नॉर्थ बिहार में कॉमन है तो उसको किस तरह से प्रीवैलेंस रेट के जरिए ही निकाले. तो जब हमने कहा कि नॉर्थ बिहार कालाजार इज द वेरी कॉमन इन नॉर्थ बिहार, तो ये हमारा टोटल पॉपुलेशन जो हो जाएगा नॉर्थ बिहार का अप्लाई होगा, न कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे स्टेट का या पूरे इस एक डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई होगा न के. तो इसलिए पॉपुलेशन जो इसमें होगा, जब हम बात करेंगे बायोस्टैट में पॉपुलेशन की, तो ये डिफरेंट होगा. स्टैटिस्टिशियन यूज द वर्ड पॉपुलेशन is very different sense from the other. It is the sum of total. Definition लिखना है, लिख लीजिए. It is the sum of total of all persons. It is the sum of total. It is the sum total of all person और ऑब्जेक्ट. हाँ, अगर कट जाता है तो आप लोग दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे. 2 मिनट के में मैं आ जाऊंगा वापस से ऑनलाइन. तो क्या हो जाएगा कि हमारा पॉपुलेशन का जो डिफिनेशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट about which we want to obtain information or apply the information. ओके. तो ऑप्टेन हमने, अगर जो अभी पीएसएम वालों को मैंने एग्जांपल दिया, ऑप्टेन कितना 50 या 100 से किया, तो ये भी हमारा पॉपुलेशन. अप्लाई कितने पे किया, पूरे कदम कुआं के फीमेल पे किया, तो ये भी हमारा पॉपुलेशन ही है. हम यहाँ पे पूरे पटना की बात नहीं कर सकते. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज पॉपुलेशन? हेलो.
सर। सर ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द कि पॉपुलेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉपुलेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पॉपुलेशन का जो अलग अलग टाइप होता है उसमें उसको हम जो डिनोट करते हैं वो पॉपुलेशन डायमेंशन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन डायमेंशन से डिनोट करते हैं। तो पॉपुलेशन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट थिंग जो आती है वो क्या क्या आती है। सबसे पहले पॉपुलेशन की साइज क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पीएसएम वाले तो 50 से 100 वो भी